Hello everyone, welcome to DSS online class. Today I present with the new video of chapter 4 determinants. Dear student, earlier we have discussed about distributive determinant, and after that today I will discuss about possessive determinants. Possessive determinants. So what is possessive determinants? Here are some examples of possessive determinant, like my, our, your, his, her, their, its, etc. are possessives because they show the possession to the something. These are the possessive determinants that show the possession, that show the relation of noun or pronoun or something. ये जो होते हैं my, our, your, his, her, their, etc. ये क्या होते हैं? ये possessives होते हैं जो शो करते हैं, एक रिलेशन को शो करते हैं और एक पोजीशन को शो करते हैं. तो these are known as possessive determinants. And here use of possessive determinant. I, whenever we write I, then possessive determinants are my. And whenever we write we, possessive determinant is our. Whenever we write you, possessive determinant is your. Whenever we write he, the possessive determinant is his. Whenever we write she, the possessive determinant is her. Whenever we write they, the possessive determiner is their. And whenever we talk about it, then possessive determiner is its. Okay, student? And here are some notes that clear the meaning of possessive determinants. Okay? First is possessive can be used before singular numbers and plural numbers. Means possessive can be used both with singular and plural. अगर possessive determinants को जो है हम लोग singular नंबर के साथ भी यूज कर सकते हैं और plural नंबर के साथ भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ता है. And second rule is possessive can be used before countable noun as well as uncountable noun. Means possessive noun का यूज जो है हम लोग countable noun के साथ भी कर सकते हैं और uncountable noun के साथ. countable जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसके साथ भी जो है हम लोग possessive noun का यूज कर सकते हैं. So it is very easy to understand the use of possessive determinant. And after that, there is an exercise in your book, and I hope you do very easily that exercise. Okay, thanks. Hello everyone, welcome back. Now we will discuss about quantifiers. Dear student, what is quantifiers? Quantifiers are determinants that is used to express the quantity. वो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए quantifiers यूज किए जाते हैं. Just as here is the some example of quantifier. Just as some, any, much, many, several, more, little, less, least, most, few, etc.
आर क्वांटिटी फायर्स। ये जो वर्ड्स हैं सम, एनी, मच, मेनी, सेवरल, मोर, लिटिल, लेस, लिस्ट, मोस्ट, फ्यू, ये सभी जो है क्वांटिटी फायर्स कहलाते हैं। इनका यूज जो है किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जब किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना होता है वहां पे हम लोग क्वांटिटी फायर्स यूज किए जाते हैं। जस्ट एज सम, एनी, ये भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। मच जो होता है वह अनकाउंटेबल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मच का यूज किया जाता है। मेनी, ये काउंटेबल जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसके लिए मेनी का यूज करते हैं। सेवरल, ये भी जो है काउंटेबल नाउन के साथ होता है। मोर जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लिटिल, ये भी अनकाउंटेबल। लेस, ये भी अनकाउंटेबल। लिस्ट, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मोस्ट भी जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज की जाते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं सभी का यूज जो है क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसी को क्वांटिटी फायर्स डिटरमाइनर्स कहते हैं। एंड हियर वी विल स्टडी अबाउट यूज ऑफ सम। सम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सम may be used for both quantity and number। मीन्स सम का यूज जो है क्वांटिटी के लिए भी कर सकते हैं, किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और नंबर के लिए भी कर सकते हैं। जब किसी नंबर को भी रिप्रेजेंट करना होता है तो वहां भी हम लोग सम यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन पॉजिटिव सेंस। मीन्स सम का यूज जो है हमेशा पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंस में किया जाता है, कभी भी निगेटिव सेंस वाले सेंटेंस में सम का यूज नहीं होता है। पॉजिटिव सेंस। एंड हियर इज द सम एग्जांपल दैट क्लियर द यूज ऑफ सम। जस्ट एज सम बॉयज, यहाँ पे या जो है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि बॉयज जो है काउंटेबल होता है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। एंड हियर सम शुगर, ये क्वांटिटी होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसके साथ भी यानी नंबर के लिए भी यूज हो रहा है और क्वांटिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। उसके बाद से इट ऑल्सो यूज इन पॉजिटिव सेंस। उसका यूज हम लोग पॉजिटिव सेंस के लिए भी करते हैं। जस्ट एज शी हैड सम गुड आइडिया टू प्रेजेंट। मीन्स उसके पास जो है कुछ गुड आइडिया है, अच्छे आइडियाज हैं प्रेजेंट करने के लिए। सो हियर सम इज यूज फॉर पॉजिटिव सेंस। यहाँ पे सम का यूज जो है पॉजिटिव सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। ओके, नाउ यूज ऑफ एनी। एनी का यूज, एनी का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं? तो हियर एनी इज यूज फॉर बोथ क्वांटिटी एंड नंबर। मीन्स एनी का भी यूज जो है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एज वेल एज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर निगेटिव सेंटेंस। एनी का यूज जो है हमेशा निगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। जहां पे एनी का यूज होता है वो निगेटिव सेंटेंस के लिए उसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो पर्टिकुलर चॉइस। और एनी का एक और यूज है कि इफ देयर इज नो एनी अदर चॉइस देन वी यूज एनी। अगर कोई चॉइस को रिप्रेजेंट करना नहीं होता है वहां पे भी हम लोग एनी का यूज करते हैं। ओके, एंड हियर इज सम एग्जांपल दैट क्लेरिफाई द यूज ऑफ एनी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो एनी के यूज को और ज्यादा आपको
क्लियर कर देंगे, आपको बिल्कुल डाउट ही नहीं रहेगा। एंड हियर, हैव यू बॉट एनी शुगर फ्रॉम द शॉप? यानी क्या जो है आपने शॉप से कुछ भी शुगर खरीदा है? यानी आपने शुगर नहीं खरीदा है, यानी ये निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो है जो शुगर है, तो यहाँ पे जो शुगर है वो क्वांटिटी को भी एक्सप्रेस कर रहा है। तो पहले सेंटेंस में हम लिखे हैं एनी इज यूज फॉर क्वांटिटी एंड नंबर, माने एनी का जो है क्वांटिटी और नंबर दोनों के लिए यूज होता है। और यहाँ पे जो यूज हुआ है एनी, यह जो है क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज नॉट रिटन एनी एसे। मीन्स जैसा कि हम लोग सेकेंड सेंटेंस में कहे हैं, इट इज यूज फॉर निगेटिव सेंटेंस। मीन्स यह निगेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए निगेटिव सेंटेंस है कि वह जो है ऐसे नहीं लिख चुकी। ओके, सो हियर एनी इज यूज फॉर निगेटिव सेंस। एंड थर्ड इज देयर इज, इट इज यूज व्हेन देयर इज नो पर्टिकुलर चॉइस। जब कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं होता है तो वहां पे भी हम लोग एनी का यूज करते हैं। जस्ट एज यू कैन गेट एनी जॉब एनीवेयर, मीन्स आप जो है कोई जॉब और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हियर एनी इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर चॉइस। एनी का जो है पर्टिकुलर चॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है। ठीक है, कि आप कोई भी जॉब कहीं भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड what is quantifier and what is use of sum and any. And you have in class 6 you have also studied about much, maybe several more, little, less, least, most, few, etc. And I hope you understand what is the use of sum and any. And on the basis of this, there is an exercise in your book, and I hope you have complete and you have not any problem in that exercise.